Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing the revision going on basically, and we have discussed the 8 chapters. And the 2 chapters I have revised, chapter number 7 and chapter number 8, and these 2 chapters are very, very important regarding the exams. Okay, today we are going to revise the chapter number 9, the living organisms and their surroundings. In this chapter, children, we are going to revise about the living characteristics, okay, the characteristic of the living things and the surroundings, the habitat, okay, the adaptations. Okay, so lots of things are there which we are going to discuss here. Okay, children, do you know what are organisms? Organisms are the living creatures. They are the small and the living creatures that we call what are organisms. Okay, so the organisms and the surroundings where we live. Children, around us, if you'll see, there are lots of animals and lots of plants are living. And the kinds of plants found in each of the region, different regions have different plants. If you'll see that in desert there is a different type of plant, in forest, in oceans, that is, you can say, the marine plants are there. So what about the surrounding in these different regions, है ना? तो क्या जो भी हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं, क्या वहाँ पे सब कुछ सेम होता है? वहाँ के प्लांट्स, वहाँ पे एनिमल, जो रहने वाले एनिमल्स, क्या वो सेम होते हैं? नहीं होते। वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दे ऑल आर डिफरेंट, है ना? तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की, ठीक है ना? अगर आप बात करो बच्चों, सी में यानी समुद्र में जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर सराउंडेड बाई ए सलाइन यानी सॉल्टी वाटर से चारों ओर से घिरे होते हैं, है ना? और द मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? दे टेक द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन द वाटर। सो देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट की अगर बात करें, डेजर्ट में क्या है? बहुत ही कम पानी वहाँ पे होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम and very cold at the night in the desert. So the animal and plants of the desert, they live on the desert soil and breathe what? Air from the surroundings. तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो सी और जो डेजर्ट्स हैं, they are have very different surroundings. They both are having the very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in these two regions, है ना? So let us see very two kind of different organisms from the desert and the sea. First is a camel and the second one is what? A sea, है ना? तो if you'll find out the camel, what are the adaptation you'll see there, है ना? अगर कैमल की आप बात करें तो कैमल में कौन कौन से एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, है ना? बिकॉज द डेजर्ट एनिमल्स, दे ऑल हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू लिव इन देयर हैबिटेट इन द फॉलोइंग वेज। तो आइए देखते हैं भाई। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडेप्टेशन होता क्या है बच्चों, ठीक है ना? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और द सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Means कि जो भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में या स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, उनके पास स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, है ना? कुछ सर्टेन हैबिट्स होती हैं जिससे वो प्लांट और एनिमल वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द एडेप्टेशन, है ना? डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन द डिफरेंट वेज, है ना? और उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट, है ना? मीन्स द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और आपको पता है, द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर फूड। The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. अपने habitat पे ही वो डिपेंड करते हैं, उनके habitat से ही उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि कैमल, तो कैमल कैसे सर्वाइव करता है, मैं यहाँ पे 2 एडेप्टेशन आपको बताता हूँ कि हाउ द कैमल सर्वाइव बेसिकली। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको मैं बताऊँगा कि जिसकी वजह से आप जान पाओगे कि यस, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं यानी जो कैमल है, वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है डेजर्ट सराउंडिंग में या डेजर्ट रीजन में, उस हैबिटेट में, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो कैमल की होते हैं, जो आई लैशेज होती हैं,
ठीक है। कैमल की जो आई लैशेज होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उनके जो ईयर होते हैं, ईयर पिन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं, ईयर के जो हेयर्स होते हैं, ईयर पिन्ना यानी ईयर के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी बहुत बड़े होते हैं, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिला, क्या कि कैमल की जो आई लैशेज होते हैं बहुत लंबी होती हैं, और जो ईयर के हेयर्स होते हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं। इनसे फ़ायदा क्या होगा उसको, इट प्रोटेक्ट द आइज एंड ईयर फ्रॉम द सैंड। आपको पता है जब सैंड की आंधियाँ, जब रेत की आंधियाँ चलती हैं तो क्या होता है, वो रेत उसकी आंख में जा सकती है, उसके कान में जा सकती है ना, लेकिन उसके आई लैशेज बड़ी बड़ी होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो उसके आंख में नहीं जाती, है ना। जो ईयर के हेयर्स होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें क्या होता है, नहीं जा पाती उसमें, ठीक है ना। तो ये एक एडेप्टेशन है ना। दूसरा है कि फैट, जो फैट स्टोर्ड होता है कैमल में, वो हम्प देखा आपने कैमल का हम्प, है ना। तो कैमल के हम्प में फैट स्टोर्ड होता है कि वो फूड रिजर्व होता है ना, क्योंकि आपको पता ही है रेगिस्तान में भोजन की कमी है ना, तो वहाँ पे अपने फूड को क्या करके स्टोर करके रखता है, फैट को स्टोर करता है उसके। अब देखो नेक्स्ट है इसके लॉन्ग लेग्स। जो कैमल के जो लॉन्ग लेग्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैर उसके लंबे होने की वजह से जो सैंड, जो गर्म सैंड होती है उससे उसकी बॉडी अवे, है ना। सो इट्स लॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, है ना। हॉट सैंड से उसकी बॉडी क्या होती है, ज़्यादा ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ब्रॉड फीट होते हैं, इसके जो चौड़े फीट होते हैं वो उसको वॉकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वो सैंड के अंदर धंसते नहीं हैं, सिंक नहीं करते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर वी कैन से द एडेप्टेशन, वेरी गुड एडेप्टेशंस आर देयर, है ना। इसी क्या करता है, ये यूरिनेट बहुत कम करता है, इससे इसका क्या होता है, वाटर का लॉस भी कम होता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की भी कमी, है ना। इसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बंद रखता है ना, टू कीप आउट द सैंड, सैंड को अपने नाक में नहीं जाने देता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेजर्ट को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं सर्वाइव करने में, कैमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है ना। अब बात करें अगर फिश की, तो फिश में क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो पहली चीज़ ये है कि भाई जो फिश की बॉडी होती है वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है ना। दे ऑल हैव द व्हाट, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। सो दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर, है ना। ये जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ये शेप उनको क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है। फिश के पास स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडीज पे, एंड दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो द हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर, है ना। दूसरा चीज़ ये कि जो फिश होती है उनकी फ्लैट फिन्स होती हैं, टेल्स होती हैं, जिससे क्या होता है, दैट हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिल्स, आपको पता है ये गिल्स फिश में जो पाई जाती हैं, इट हेल्प देम टू यूज द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन वाटर। सो इन दिस वे यू कैन से दैट द कैमल एंड फिश, दे सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स, और यू कैन से इन देयर हैबिटेट्स, है ना। सो उसी से आपका ये एडेप्टेशन टर्म आता है, यानी कोई भी जो भी आपका स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किसी प्लांट में या किसी एनिमल में, है ना, या कुछ सर्टन हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है, इट इज कॉल्ड व्हाट, एडेप्टेशन, है ना। और उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं वो क्या होता है, हैबिटेट होता है, ठीक है ना। तो हैबिटेट बच्चों कई टाइप का हो सकता है। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड व्हाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Okay, so those type of plants and animal which live on the land are said to live in the what, terrestrial habitat. Some examples of terrestrial habitats are what, forest, grassland, deserts, coastal and mountain regions, है ना। जबकि अगर एक और चीज़ देखें, जो हैबिटेट प्लांट्स के होते हैं और एनिमल्स के होते हैं, है ना, तो ऐसे हैबिटेट प्लांट और एनिमल्स के जिसमें वो वाटर में रहते हैं आर कॉल्ड व्हाट, एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। दे आर कॉल्ड द एक्वेटिक हैबिटेट। तो बच्चों पॉन्ड्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, लेक्स, रिवर, ओशन, दे ऑल आर सम एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्वेटिक हैबिटेट। तो यहाँ आपको बेसिकली दो टाइप के हैबिटेट दिखे, एक्वेटिक एंड व्हाट, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल वो जो जमीन पे पाए जाते हैं, हाँ। और टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हो जाएंगे आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, अगर आप देखो तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऑन द अदर हैंड जो आपके फॉरेस्ट, जो एक्वेटिक हैबिटेट्स है इसमें पॉन्ड, स्वैम्प, रिवर, ओशन, सीज, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आपको पता है देयर आर लार्ज वेरिएशन इन द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हर जगह ये फैला हुआ है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसा लिविंग थिंग,
है ना, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, किसी भी हैबिटेट में, किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो लिविंग थिंग्स वहाँ पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग दो ही होंगे, या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा, ठीक है। तो किसी भी हैबिटेट में जो लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना, व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम द बायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल देम द बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। और जो उस हैबिटेट में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे सनलाइट, हीट, दे ऑल आर व्हाट, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दैट हैबिटेट, है ना। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एडेप्टेशन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे हैबिटेट्स को देखेंगे, ठीक है। और हैबिटेट्स को देखने के बाद फिर उनके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पहले डेजर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबायोटिक फैक्टर, डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर और एडेप्टेशन इन कैमल्स, इसके बारे में। तो एडेप्टेशन इन कैमल तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या एडेप्टेशन होता है उसमें, है ना। दूसरे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। क्या उनमें भी सेम टाइप का एडेप्टेशन पाया जाता है जैसा कैमल में पाया जाता है ना। सो देयर आर डेजर्ट्स एनिमल लाइक रैट एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स। समझ में आ रहा है, मैंने अभी क्या बताया कि जो भी डेजर्ट है उसकी तो लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसलिए वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, बचा लेता है। लेकिन जो रैट होते हैं, कंगारू रैट या जो आपके स्नेक्स होते हैं, इनके पास तो पैर नहीं होते इतने बड़े बड़े, तो ये कैसे सैंड से बचते हैं, है ना। सो ये उस गर्मी से बचने के लिए ये डे टाइम में नहीं निकलते, ये क्या कहते हैं, डे टाइम में अपने बरोज में छुपे रहते हैं, ठीक है। और ये ओनली कब निकलते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रात में निकलते हैं। तो ऐसे जानवर जो सिर्फ रात में ही निकलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द नॉकटर्नल एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि रात में ठंडा होता है तो इस वजह से क्या करते हैं, निकलते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें जो डेजर्ट्स में बेसिकली जो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स बड़ी लंबी लंबी होती है ना। इनकी रूट्स क्या होती हैं, लंबी होती हैं। क्यों होती हैं इनकी रूट्स लंबी, क्योंकि बच्चों इनको क्या होता है, वहाँ पे पानी जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए वो पानी की तलाश में, है ना, इन द सर्च ऑफ वाटर, ये बहुत डीप इनसाइड नीचे तक जाते हैं, है ना। दूसरी चीज़, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पानी की वहाँ पे कमी है, इसलिए ये बहुत ही कम पानी या लिटिल वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकालते हैं। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, या तो जो लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स में या तो वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, या बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ए स्पाइंस, है ना। तो जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पाइंस के शेप में मॉडिफाई होते हैं। इससे क्या होता है, वो बहुत ही कम वाटर को क्या करते हैं, लूज करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। जैसे कैक्टस वगैरह हम देख सकते हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को जो कैक्टस में मिलता है वो स्टेम होता है, बेसिकली लीफ नहीं होती, है ना। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा कैक्टस में, इनफैक्ट वो स्टेम होता है ना। और इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस, तो आप पूछेंगे सर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है जब इसमें लीफ नहीं पाई जाती। तो बच्चों जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, वो इन्हीं स्टेम्स के द्वारा होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। सो स्टेम के ऊपर भी क्या होती है, बहुत ही वैक्सी, एक थिक वैक्स की कवरिंग होती है, लेयर होती है, जिससे वो पानी को उसमें स्टोर करके रखता है ना। और आपको पता है अभी जिससे मैंने बताया कि जो ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो है बहुत डीप होती हैं, जिससे वो वाटर को अच्छे से एब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये बात है किसकी, डेजर्ट की। अब बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। बच्चों आपको पता है माउंटेन रीजन पे जो हैबिटेट है, बेसिकली जो माउंटेन रीजन्स का हैबिटेट, वो नॉर्मली वेरी कोल्ड होता है, बहुत विंडी, हवा भी बहुत चलती है और बहुत ठंडा भी होता है। कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ भी बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे आप देखो स्नो लेपर्ड हो गए, याक हो गया, है ना, या इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन रीजन में, देखो ऐसे नुकीले होते हैं ऊपर से, है ना। तो अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं, अगर आप वहाँ पे देखा है तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। पोलर बियर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे किस तरीके से ये अडेप्ट करते हैं, है ना, हाउ दिस ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इनमें कोन शेप, जो ब्रांचेज होती हैं, जो ट्रीज का शेप होता है वो कोन शेप होता है ना। बहुत ही स्लोपिंग ब्रांचेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है ना, कि देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई यहाँ पे स्लोपी ब्रांचेस आपको इसलिए देखने को मिलेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है ना। तो जब स्लोपी होता है तो सारी की सारी बर्फ़ क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, यानी नीचे फिसल जाती
है ना, और कोन शेप होने की वजह से ये फ़ायदा होता है। इनकी जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, निडल लाइक होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो रेन वाटर यहाँ पे गिरता है वो क्या होता है, स्लाइड होके नीचे चला जाता है। स्नो जो होते हैं वो भी इजीली स्लाइड कर जाती है नीचे की तरफ। तो ये एक अडेप्टेशन है इनका, है ना। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, है ना, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द माउंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टाइप में पाए जाए, और डिफरेंट टाइप के भी शेप्स के पाए जाते हैं, बट मोस्टली आपको कोन शेप के प्लांट्स वहाँ पे देखने को या ट्रीज मिल जाएंगे, है ना। जो दूसरे टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे उनके डिफरेंट टाइप और दूसरे टाइप के आपको एडेप्टेशन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और क्या, क्योंकि जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हवा बहुत चलते हैं, इसलिए क्या होता है, जो इनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्राउंड, वो बहुत ही मजबूती से जो है अंदर रूट्स के द्वारा एंकर्ड होते हैं, है ना। और एक चीज़ और, जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, है ना, क्योंकि हवा बहुत चलती है, वो अपरूटेड हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी लीव्स बहुत स्मॉल होते हैं, जिससे वाटर लॉस भी क्या हो, कम हो, ठीक है। अब आते हैं एनिमल्स पे। जो एनिमल्स पाए जाते हैं माउंटेन रीजन्स पे, उनमें भी क्या होता है, दे आर अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। वो भी क्या, इनके ऊपर आपको पता बहुत ठंड पड़ती है इसकी, इसलिए इनके ऊपर एक थिक स्किन की और फर की कवरिंग होती है जिसको कोल्ड से बचा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल याक, दे हैव अ लॉन्ग हेयर टू कीप द वार्म। इनके बहुत लंबे लंबे हेयर होते हैं जिससे क्या होता है, वो गर्म रहते हैं, ठीक है। जैसे स्नो लेपर्ड है, इसमें क्या आता है, इट हैज अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, है ना। स्नो लेपर्ड में बहुत ही थिक फर होता है उनकी बॉडी पे, जो हेल्प करता है इनको। इनके जो फीट होते हैं और जो टोज होते हैं, है ना, उस पर भी क्या होता है, बहुत ही थिक फर होता है। इससे क्या होता है, ये कोल्ड से बचाने में इनकी हेल्प करता है ना। और ये इजीली वॉक भी कर सकते हैं स्नो पे। दूसरा, जो माउंटेन गोट होती है ना, उसके बाद क्या होता है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन गोट की जो हूव्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो रॉकी स्लोप्स पे इजीली क्या कर सकती है, दौड़ सकती है, रन कर सकती है और वॉक कर सकती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, वहाँ के जो सराउंडिंग्स होते हैं बेसिकली वो चेंज होते हैं, एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। तो अलग अलग डिफरेंट हाइट पे हमको डिफरेंट एडेप्टेशन देखने को मिल जाते हैं। अब हम आते हैं ग्रासलैंड पे। बच्चों, आपको पता है कि जो लायन होता है वो फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड में भी रहता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो हंट कर सकता है और दूसरे एनिमल को, जैसे डियर को क्या कर सकता है, वो किल कर सकता है। वो लाइट ब्राउन कलर का होता है ना, आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे और ये आपका क्या है, डियर है, ये भी जो है ब्राउनिश कलर का है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ आर दीज द आईज प्लेस्ड इन द फेस। अब इन दोनों के आईज किस तरीके से प्लेस्ड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों की, जो एनिमल पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो ग्रासलैंड के एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट रन करते हैं। जैसे गैजल्स हो गए, डियर हो गए, है ना, जेब्रास हो गए, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो वहाँ छुपने के लिए झाड़ियाँ नहीं होती हैं, पेड़ नहीं होते, ट्रीज़ नहीं होते, इसलिए इनको बहुत ही तेज़ दौड़ना पड़ता है, जिससे वो अपने प्रेडेटर से, यानी जो हंट कर रहा है उनको, टाइगर वगैरह से, लायन वगैरह से वो बच सके, है ना। सो दिस एबिलिटी ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रिक्वेंट ग्रासलैंड फायर्स। अगर आग भी लग जाए, ग्रासलैंड्स वगैरह में आग बहुत लगती है, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये बच सकते हैं, है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रासेस होती हैं ग्रासलैंड में, ठीक है, वो ड्राई होती हैं, ब्राउन इन कलर होता है ना। तो जो ज़्यादातर जो ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन का शेड होता है ना, वो ब्राउन ही होता है, वो ब्राउन होता है, जिससे वो क्या करता है, वो उनके ग्रासेस से मैच कर जाता है, जिससे शिकारी उनको देख नहीं पाता, है ना। तो ये सब क्या है, एनिमल के एडेप्टेशंस ही, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो आइज़ होती हैं, है ना, डियर की आइज़ साइड में होती हैं, जिससे वो देख सकता है, लायन की आइज़ एकदम आगे होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ एडेप्टेशंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लायन से क्या होते हैं, बहुत ही लॉन्ग क्लॉज होते हैं उनके फ्रंट लेग्स में, है ना, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, ठीक है, जिससे, तो ये फीचर लायन का किस तरीके से हेल्प करता है ना। तो इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है, इट हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, यानी एनिमल्स टू इट। तो ये इसके लिए लायन को भी फायदा करता है, क्योंकि ये भी छुप छुप के शिकार करना चाहता है, तो इसके भी जो स्किन का कलर होता है वो ब्राउन होता है ना। तो ये भी ग्रासलैंड में, ब्राउन ग्रास में क्या हो जाता है, छुप जाता
है ना। और जो आइज होती हैं फ्रंट में सामने, वो क्या करती हैं, वो उसको करेक्ट पोजीशन और करेक्ट आइडिया देती है कि मेरा प्रे किस लोकेशन पे है। दूसरा जो आपका क्या है, जो डियर है, ये भी एक एनिमल है जो वहाँ पे रहता है ना, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिससे ये हार्ड जो प्लांट के स्टेम्स होता है उनको खा सकता है फॉरेस्ट में। दूसरा ये है कि भाई ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है, इट इज़ अ लॉन्ग ईयर्स, इसके कान बहुत बड़े होते हैं जिससे ये क्या कर सकता है, प्रेडेटर के मूवमेंट को ईजिली क्या कर सकता है, सुन सकता है। इसकी जो आइज होते हैं वो साइड्स में होती हैं, है ना, सो दैट इट कैन अलाउ टू लुक इन द ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर। और दूसरी चीज़ जो स्पीड होती है डियर की, वो बहुत तेज़ होती है जिससे वो क्या हो सकता है, बहुत तेज़ी से बच सकता है, भाग सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं बच्चों ग्रासलैंड में जो एनिमल्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बच्चों ये कि जो ग्रासलैंड में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवा चलती है जिससे वो टूट ना जाए, तो ये भी एक अडेप्टेशन है। दूसरी चीज़, इनके जो प्लांट के जो स्ट्रॉन्ग रूट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे इनको अपरूटिंग से बचाती हैं, ठीक है। अब आते हैं ओशन, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स देख लेते हैं। ओशन की अगर बात करें, ठीक है, तो बच्चों देखो एक्वेटिक हैबिटेट्स में भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीज का तो हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे फिश वगैरह के बारे में बता चुके हैं। कुछ और भी सीज एनिमल हैं जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी पहली बात तो देखने को मिलती है, सो दैट दे कैन ईजिली मूव इन वाटर। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स, ऑक्टोपस, जिनके पास क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी या शेप नहीं होती, सो दे स्टे डीपर इन द ओशन। ये नीचे रहते हैं ओशन में, नियर द सी बेड, और वहीं पे अपने प्रे को कैच करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये मूव करते हैं तब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। जब ये स्टिल एक जगह बैठे रहते हैं या रहते हैं तब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन, लेकिन जब ये मूव करते हैं ना तो अपनी बॉडी को पतला कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, है ना। एंड दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। इनके पास क्या होती है, गिल्स होती है जिससे ये जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको क्या कर सकें, ले सकें। उसके बाद से बच्चों कुछ ऐसे सी एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन हो गए, वेल्स हो गए, इनके पास गिल्स नहीं होते, तो फिर ये ब्रीथ कैसे करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल्स। यस, ध्यान रखना, है ना। जो वेल्स होते हैं ये ब्लो होल्स के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, ब्रीथ करती हैं, है ना। दे डू नॉट हैव द गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, दे हैव द ब्लो होल्स विच इज लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, है ना। और ये बार बार वाटर सरफेस पे आती हैं और वहाँ पे क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं एयर ब्लो होल्स के थ्रू, और फिर नीचे चली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, ये ब्लो होल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना। और एंड यू नो दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, है ना। और फिर ये टाइम टू टाइम सरफेस पे आते हैं, वहाँ से ब्लो होल के थ्रू ब्रीथ करेंगे और फिर से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स पे, है ना। तो अगर पॉन्ड्स एंड लेक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो कभी आपने ऐसे प्लांट देखे हैं जो पॉन्ड्स में या लेक्स या रिवर में क्या होते हैं, उगते, है ना। एक बार आप जा करके देखिए अगर आपको देखने का कहीं मौका मिले, ठीक है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, दे आर फिक्स्ड इन सॉइल बिलो द वाटर, है ना। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट जो रूट होते हैं दे नॉर्मली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेयर, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट और ट्रीज होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, किसको, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल से। हावेवर जी इन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, इन एक्वेटिक प्लांट्स जो रूट्स होते हैं दे आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन क्या है, टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, यानी वो प्लांट को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, बस यही है उनका काम। जो स्टेम होते हैं इन प्लांट्स का वो बहुत लंबी होती हैं, हॉलो होती हैं और बहुत ही हल्की होती हैं जिससे ये तैर सकें ऊपर, स्विम कर सकें, है ना, फ्लोट कर सकें, नॉट स्विम, फ्लोट कर सकें। जो स्टेम होता है वो ग्रो अप करता है ना, द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर, वाइल द लीव्स होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद से बच्चों कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं विच आर टोटली सबमर्ज इन वाटर, जो पूरी तरीके से पानी में डूबे होते हैं। तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट दे ग्रो अंडर वाटर एंड सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव ए नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव। इनकी जो लीव्स होते हैं वो रिबन और थिन लाइक होती हैं, जो ईजिली क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ फ्लो करके जो फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड कर सकती हैं, है ना। दूसरा जो और जो सबमर्ज प्लांट्स हैं, लीव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं, है ना, जिससे ईजिली उनसे क्या हो सके, ईजिली फ्लो हो सके। तो बहुत सारी कटिंग्स होती हैं उसमें जिससे वो डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग होते हैं यूजली दे हैव द पॉन्ड एज देयर हैबिटेट। जो फ्रॉग होते हैं वो आपके किसमें, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। फ्रॉग तो ऐसा है जो आपके लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है
दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनके जो पीछे के लेग होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, विच हेल्प देम टू लीपिंग और कैचिंग देयर प्रे। इनकी जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, विच हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। सो दीज आर सम कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने हैबिटेट के बारे में जाना और पढ़ा, ठीक है। आप मेरा जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी देख सकते हैं, वो बहुत ही डिटेल वीडियो है। उसके बाद आप ये रिवीजन वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है, इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं लिविंग थिंग्स, जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स है भाई उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं, है ना। तो लिविंग थिंग्स के भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई इनके कुछ ना कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे। मीन्स डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड? यस, दे नीड फूड, है ना भाई। जो प्लांट्स होते हैं वो तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, है ना, दूसरे एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। तो फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी विच इज नीडेड फॉर देम टू ग्रो, और उसी से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। डू ऑल द लिविंग थिंग्स शो द ग्रोथ? क्या आपका जो कुर्ता जो पहना है वो 4 साल से वो ग्रोथ दिखाता है? नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना। जो यंग वंस होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, किस तरीके से बेबी जो ग्रो कर रहा है एडल्ट में। तो ग्रोथ, यस, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, ठीक है। क्या डू ऑल द लिविंग थिंग रेस्पायर? क्या वो रेस्पायरेशन करते हैं? यस, ऑफ कोर्स करते हैं, है ना। क्या हम विदाउट ब्रीथिंग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारे अंदर, बाहर से अंदर मूव कर जाती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाती है ना। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू द आउटसाइड। तो ब्रीथिंग क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेस्पायरेशन। तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में आपको देखने को रेस्पायरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं किसकी? स्टिमुलाई की, यानी जितने भी और लिविंग थिंग्स से क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड का मतलब अगर बाहर से कोई चीज़ हम एक्शन दे तो क्या उसका वो रिएक्शन देखने को मिलेगा? ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको जैसे छुई मुई का पौधा जैसे आप टच करते हो वो क्या हो जाता है ना, वो ड्रूप डाउन कर जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाती हैं उसकी लीव्स। तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, ठीक है, स्टिमुलाई की कहीं ना कहीं आपको रिएक्ट कर रही हैं। तो जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में है दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो सारे एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे वाइल्ड एनिमल दे रैन अवे व्हेन द ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। सिमिलरली कॉकरोचेस हैं, दे बिगिन टू मूव टू द हाइडिंग प्लेसेस जब हम लाइट ऑन कर देते हैं, है ना। सो दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सेज ऑफ व्हाट? स्टिमुलाई, कि कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट्स भी करते हैं, जैसे आपने बताया फ्लावर ऑफ सम प्लांट द ब्लूम ओनली नाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो रात में ही खिलते हैं, जैसे मिमोसा पुडिका जो है जिसको हमने टच मी नॉट बोलते हैं, उसको टच करो तो उसकी लीव्स ड्रॉप डाउन हो जाती हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इनके, ठीक है। अगर आप किसी विंडो के पास क्या करो जहाँ से सन की रोशनी आ रही है, अगर वहाँ पे आप प्लांट को रख दो तो उसके जो स्टेम होगा वो सन की तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएंगे। तो ये भी क्या है कि भाई हमारा प्लांट जो है लाइट के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, यस, एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्ट बाय लिविंग, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बच्चों शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है ना। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम बाहर निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। सो सारे के सारे प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ पॉइजनस, कुछ हार्मफुल मटेरियल जो होते हैं जो शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। कुछ प्लांट दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी क्या है? बहुत ही लिविंग, है ना, थिंग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिर बात करते हैं कि डू ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड? ऑफ कोर्स, है ना। जो बर्ड है वो दूसरे बर्ड्स को बर्थ देगी, प्लांट जो है वो अपने तरह के प्लांट फिर से सीड से प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये रिप्रोडक्शन ही है ना। रिप्रोडक्शन इज क्या? प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड। सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में। कुछ एग्स देते हैं, कुछ डायरेक्टली जो है यंग वंस को बर्थ करते हैं, है ना। सो यस, द प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड बोथ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट? डिफरेंट। सो डू ऑल द लिविंग थिंग मूव? यस, ऑफ कोर्स ऑल द लिविंग थिंग्स मूव। कैसे? अब आप बोलेंगे सर प्लांट तो मूव नहीं करता, बट वो मूवमेंट शो करता है, हिलता डुलता रहता है,
है ना। लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंट है। लोकोमोशन इज व्हाट, लोकोमोशन इज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज लोकोमोशन, एंड मूवमेंट इज क्या कि खड़े होकर के एक ही जगह पे अगर आप हिल डुल रहे हैं तो दैट इज अ मूवमेंट। तो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, इवन हम लोग भी मूवमेंट शो करते हैं। तो मूवमेंट इज ऑल्सो व्हाट, करेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, ठीक है। तो लाइफ बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, और लिविंग थिंग्स के ये कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया और ये आपको समझाया। तो इंपॉर्टेंट था, एक शॉर्ट रिवीजन था आपके लिए, ठीक है। जरूर इस चैप्टर के थ्रू जाएं आप, ठीक है, और एक बार अच्छे से रिवीजन करें, क्वेश्चन आंसर्स लगाएं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ें, और जो मैंने वीडियोस बनाए उनको 1 2 3 बार, जितनी बार देख सकें उनको जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर न्यू रिवीजन वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।